let me record this session. You are willing to prepare for NIMSET, है ना? So as we know, Yes sir. NIMSET में बाकी सारे जो सिलेबस है ऑलमोस्ट JNU, जामिया, UPTU, if you are willing, BHU, है ना? जो गवर्नमेंट Yes sir. कॉलेजेस हैं उन सबके एग्जाम्स NIMSET के अंडर आराम से आ जाता है. मतलब if you are preparing for NIMSET, you can attempt any of these exam except one exam. That exam is DUNCA. That is a different. Yes sir. ठीक है? Now. Okay sir. So now what we have, the NIMSET का जो पेपर का स्ट्रक्चर है, आपको पता है? What is the structure? Yes sir. Math. क्या स्ट्रक्चर है? Yes sir. Yes sir. Sir, mathematics and subjects are mathematics, logical reasoning, Higher computer, maths, and logical reasoning, English, and computer science, or you can say computer application. How many questions of computer? Sir, 4 to 5, 4 maybe. Almost 10 questions. ठीक है? 10. Okay. 10 questions. English 20 questions. LR 40 questions. 40. Yes sir. And the higher mathematics questions are 50. 50. It means the highest weightage we have the higher mathematics, है ना? Okay sir. Yes sir. और ऐसा होता भी है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करता है बच्चा, बिकॉज यू आर अ मैच्योर इनफ, आप ग्रेजुएट होते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, आपको आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी रहती है. सबसे ज्यादा जो फेस करता है बच्चा वो करता है हायर मैथ्स में, उससे थोड़ा सा कम करता है लॉजिकल रीजनिंग में. और ये तो आपके बहुत इजी सब्जेक्ट्स रहते हैं. एवरीवन कैन अटेम्प्ट इंग्लिश एंड कंप्यूटर. मतलब आपको जो डिफरेंस बनाना है अपना, वो वेदर इन अ LR एज वेल एज इन अ higher mathematics. The first priority of the student is higher mathematics, है ना? I think so. And आपकी भी priority higher mathematics होगी as you are willing to prepare for NIMSET, है ना? Now, yes sir. the problem is कि how we will do that. ना यही है कि यार करेंगे कैसे? ठीक है, priority है, करेंगे कैसे? If you will see this paper, any year paper, किसी भी साल का अगर आप पेपर देखेंगे, I can differentiate these 50 question in a 3 type of questions. One is easier, that is anyone can attempt those questions. The question around 25 to 30. 25 to 30 questions वो होते हैं that the sincere student, if he has spent 4, 5 or 6 or 8 months of time, he can easily attempt it, है ना? Rest 10 to 12 questions are those questions which are be done only when the student has put it own stuff. आप अपना कुछ stuff लगाओगे, then only you can attempt these 10 to 12 question. Little a medium level of difficulty. Medium level of difficulty. So this is 10 to 12. So around we have put it almost 35 question तक हम पहुंच गए. Now we have left it 10 question, that is a higher difficulty level. Higher difficulty level. These questions you can only solve when you have कि यार नहीं मुझे करना है. These 10 questions are not dependent on the teacher's performance. टीचर की परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज टीचर की परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट ये हो सकता है. समटाइम्स दिस ऑल्सो, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपको कुछ मैथडोलॉजी, कुछ मेथड्स ऐसे बताएगा जिससे कि आप इजी टफ क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो. बट हायर डिफिकल्ट लेवल जो क्वेश्चंस रहता है, ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे, या कोई भी स्टूडेंट वो तभी कर पाएगा जब वो एक्चुअल सिनेरियो समझेगा कि नहीं यार MCA हर बार या निमसेट ये चेंजेस कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस वो देता है, या थोड़ा सा वो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा. इसका मतलब ये है कि अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आप मेरे या किसी भी टीचर के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, यू माइट गेट अ रैंक, बट गेटिंग अ गुड रैंक यू हैव टू डू द टीचर्स guidance plus your hard work in a study. Sir, both will make. Your voice is breaking, sir. I think now it is audible. Yes. Yes, now I'm out. Sir, it's still breaking, sir. Your Give me a minute. Give me a minute. Give me a minute. Give me a minute. There might be a connection problem. Give me a minute. यार उसका हॉटस्पॉट ऑन करा था तुमने?
Just a 1 minute. Sorry for this. Just a 1 minute. Yes, now I think it is okay. Yes, sir, it's okay. 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 So I was saying कि what you required, what you required. If you are willing कि यार मुझे NIMSAT देना है, तो first thing you required your dedication towards your exam. That you will not change your methodology कि नहीं यार अभी नहीं करेंगे, अभी तो 8 महीना बाकी है, या अभी 6 मंथ्स बाकी है, अभी 4 मंथ्स बाकी है. जब 4 मंथ्स आ जाए कि नहीं यार निमसेट नहीं, एनआईटी नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं यार, बीबीपी में ले लेंगे, बीएचयू कर लूंगा, जेएनयू कर लूंगा. अगर आप ऐसा मेथोडोलॉजी रखेंगे देन ट्रस्ट मी, आपको आगे चल के हो सकता है कि आपको स्विच करने का मन करे, और आप बोले नहीं आई नीड टू क्लियर दिस यू कैन से निमसेट, तो आपका एक ही फोकस बनेगा कि नहीं यार मुझे ना निमसेट क्लियर करना हो. जब निमसेट क्लियर करना है तो आप सिर्फ एक ही मेथोडोलॉजी की बात करेंगे. और अगर आपको ये भी पता है कि निमसेट अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके बाकी के एग्जाम भी क्लियर हो सकते हैं, द हायर चांस. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ऑल अबाउट दैट यू रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड. ठीक है. Yes, Now, sir, from my side is wholly for NIMSET, sir. यस दैट्स गुड, दैट्स गुड. एंड मैं आपको बता दूं, मेरा जो वो भी बैच रहता है, कोई भी जब पिछले लास्ट ईयर से जो भी हमारे बैचेस थे, वट एवर आई हैव टॉट दैट इज अकॉर्डिंग टू निमसेट ओनली. उसके बाद बच्चा कहता है सर मुझे बीएचयू देना है, तो भाई दे लो. एक्स्ट्रा तुम्हें कुछ पूछना है देन वी विल पुट अ एक्स्ट्रा सेशन, लेकिन हम निमसेट में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं. ठीक है. तो पहला तो ये हो गया. नाउ व्हाट यू रिक्वायर्ड एंड व्हाट यू विल गेट इट. आप अगर पढ़ते हैं मेरे साथ में, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे व्हाट यू रिक्वायर्ड, सो आई थिंक व्हाट यू विल गेट. आपके अगर आप सिलेबस ध्यान से देखें तो सिलेबस में अलजेब्रा है, ट्रिगो है, ज्योमेट्री वी हैव. Sir, your voice is breaking, sir. I don't know if the problem from my side or your side. एक सेकेंड लेट मी चेक. Can you check from your side? Actually unstable दिखा रहा था last time, but now it is not showing, so that now it is okay. No, sir. Now it's okay. Yeah. It is breaking in between sometimes. Okay, कोई problem. Geometry and next is what? The calculus. Next is calculus. ठीक है. These are the major part. Trust me, if you are having the good methodology, good concept, then you can solve any question of algebra within a less than of 1 minute. Any question of algebra less than of 1 minute. And similarly in trigo also less than of 1 minute. In geometry also you can apply your basic knowledge towards your logical understanding and you can get it. Yeah, I have done this. You do not need to solve the question properly. आपको पूरा solve करने की जरूरत नहीं है. लेकिन calculus is the area where you need to spend some time in the calculation understanding. Calculation means simplification. ठीक है. सिंप्लीफिकेशन इन द सेंस कि यार आपको देखो, अगर आपको कोई इंटीग्रेशन पूछेगा, बोलेगा यार साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स का मुझे इंटीग्रेशन बताओ, दैट यू नीड टू रिमेंबर सम फॉर्मूलाज, देन यू कैन गॉट इट हाउ वी कैन फाइंड आउट द, है ना. सो कैलकुलस इज द एरिया वेयर आई विल नॉट कमिट कि आपको 1 मिनट से पहले आंसर मिलेगा, बट आई कैन कमिट इन ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट this calculus, the trigo, algebra, geometry, you will easily get an questions answer within a less than of 1 minute or 1 minute. इसका मतलब है आपके पास बहुत सारा टाइम सेव हो सकता है कि क्या आप कैलकुलस में लगा लो या आप उन क्वेश्चंस में लगा लो जिन क्वेश्चन में रियली आपको ज्यादा टाइम की जरूरत है. आई एम नॉट सेइंग कि 50 में से 50 क्वेश्चन यू कैन सॉल्व मतलब इन 50 मिनट, बट आई एम सेइंग कि इसमें से 40 से या 35 से 40 क्वेश्चन यू कैन डू इन 40 मिनट. Rest 10 question you can spend 20 minute, 30 minute, whatever you want to spend, you can spend it, है ना. ये कर सकते हैं. So I'm taking one chapter as a you can say understanding based, और वो चैप्टर आपने पहले से पढ़ा हुआ है. आई थिंक आपके पास 11-12 में मैथ्स होगा. Yes sir. Okay, that's okay. So अब एक मैं आपके साथ में एक चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है. सो वहां से आपको हर साल 1-2 क्वेश्चन मिल जाता है.
मेरे, और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ बेसिक क्वेश्चंस, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे और हम डायरेक्टली निमसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि भाई हमारे हो पा रहे हैं सेम लॉजिक से या नहीं। ठीक है Now, sir, your voice is breaking. यार, गिव मी अ मिनट। आई थिंक नाउ इट विल नॉट ब्रेक, इज इट ओके? एक्चुअली आज थोड़ा कनेक्शन ना, बारिश की वजह से Sir, थोड़ा I कनेक्शन। think हाँ, the problem is on. यस। Is it from my side or your side? मेरी तरफ से नहीं है एक्चुअली, हो सकता है आपकी तरफ से हो। थोड़ा सा अनस्टेबल Oh, आपकी okay. तरफ दिखा Let रहा me है। just switch the data. Okay. आपकी Okay. तरफ से Okay. It अनस्टेबल दिखा can रहा be. हो। It can be from my side. हाँ, डन। Hello. यस, यू आर ऑडिबल। Yes, sir. Yeah. Yeah. Okay. Fine. It's now I've changed the network, so it will not ओके hinder ओके। now. And the topic is series and sequences, and we have already heard it Okay. in the 11th and 12th class, the series and Yes, sir. sequences. So what Yes, sir. we have in the series three type of series. One is arithmetic series, second is geometric Yes. series, and the third is Mm. harmonic series. So one by one we will discuss the formula concept to understand, and we will also you can say bind the logical understanding ki how we can put it along with the basics idea, है ना, वो चीज हम करने वाले हैं। भाई अरिथमेटिक Okay, सीरीज sir. क्या होती है, कैन यू एक्सप्लेन मी? Yes, sir. कोई भी सीरीज जिसके फर्स्ट एंड नेक्स्ट जो टर्म है उनके बीच में कॉमन डिफरेंस। यस, इसका मतलब है द डिफरेंस बिटवीन द टर्म इज रिमेन्स कॉमन। इसका मतलब आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया है, देन आई एम मूविंग अहेड विद द सेम थिंग। Suppose I assume a Yes, sir. first number is a and the second number is a plus d and the next number is a plus 2d. It means we have the difference as a d, we have the difference as a d. So I can say these terms are in arithmetic progression, or this series is my arithmetic series. Okay, and this sometimes it is Yes. called as a AP also, that arithmetic progression. Now अगर मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा a plus 3d dot dot dot, this was my first term, this was my Yes, second term, this was my third term, ये मेरा fourth है। तो can anyone tell me fifth term easily आ जाएगा? Can you tell me Yes, what is sir. the nth term? A plus n minus What is the 1d. relation? Relation is कि यार जब 1 था तो d मेरा नहीं था, 2 था तो d की वैल्यू 1 थी, जब 3 है तो d की वैल्यू 2 है। इसका मतलब है ये थर्ड टर्म पे d की वैल्यू अगर 2 है तो nth टर्म पे जो d की वैल्यू होगी दैट विल बी n minus 1 of d, and this will become that nth term of series, that a plus n minus 1 into d, and this is the first formula that you need to remember. ठीक है, ये आपको याद रखना है, Yeah. this is not a big deal। अब ये सीरीज Yes. कभी ना कभी तो लास्ट होगी, एंड होगा इस सीरीज का, कहीं ना कहीं तो एंड होगा। अगर इस सीरीज का Yes, sir. एंड हो रहा है इसका मतलब क्या है, दिस सीरीज विल बी एंड समवेयर, सो दैट विल बिकम अ लास्ट टर्म। Yes, sir. Last term is also a plus n minus 1 into d, the same Yeah. formula I can understand। Okay, Yes, sir. the next term is, अच्छा, difference can be negative and positive, difference कुछ भी हो सकता है, difference can be negative and positive। The next is sum of series, sum of series। What is the sum of series? Sum of series will be n term की जो series है उसका summation का formula होगा n by 2, 2a plus n minus 1 into d, 2a plus n minus 1 into d। You need to remember this also because we required। Next, इसको हम अगर रीराइट लिखना चाहें तो आई कैन से a plus n minus 1 into d। So this is what my last term, see L last term, a Yes. plus n minus 1 into d। So I have got it, the two ideas for finding the summation, one is this one and the second one is this one। So these are the two formula Yes, sir. also for the summation of series। लेकिन देखिए यहां तक तो आप बुक पढ़ेंगे, बुक में भी लिखा है, लेकिन यार ये जरूरी Yes, भी sir. है क्योंकि बेसिक है, बेसिक्स आर रिक्वायर्ड टू वी कैन से, अगर कोई लॉजिकल आपको अगर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अगर आपको बनानी है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बेसिक मस्ट बी क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अजम्पशन ऑफ टर्म क्या होगा।
I think assumption of term. Assumption of term. Now assumption of term हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है यार 3 टर्म्स अगर एपी में गिवन है तो कैसे अज्यूम करेंगे, या 5 टर्म गिवन है तो कैसे अज्यूम करेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें कर ली जाती हैं। तो मैंने अगर कह रहा हूं भाई ऑड नंबर ऑफ टर्म आपको करने हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म, और इधर मुझे अज्यूम करना है इवन नंबर ऑफ टर्म, इवन नंबर ऑफ टर्म। So what is the odd number of term? Odd number of term means suppose 3 term I want in AP, 3 term I want in AP, या मैं 4 term चाहता हूं AP में करेंगे assume, तो कैसे करेंगे? Can you know? Yes करेंगे? सर पता था मेरे को अभी आ नहीं रहा दिमाग में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, I am here to tell you here. So whenever I am willing to find out the odd term of AP, so this is A plus D, and this is A minus D. The process is when we add all, the D has to be cancelled. जो D है वो आपका क्या हो जाना चाहिए, वेनिश हो जाना चाहिए। सपोज मैंने आपसे बोला कि यार 5 टर्म अज्यूम करो एपी का, तो आप बोलोगे सर A plus D, A minus D, that A plus 2D, that A minus 2D, ठीक है, this is the 5 term of AP. But suppose I ask you how we can assume the 4 term in AP, then this has to be a minus D, A plus D, this A plus 3D, and this A minus of 3D. What is the difference? The difference is, the difference यहाँ पर जो difference होगा that will be D, but here the difference will be 2D. The difference will be 2D. Okay? Suppose 6 term आपको देखना है, suppose 6 term, the sequence same, A minus D, A plus D, A plus 3D, A plus 5D, and this is A minus 3D, and this is A minus of 5D. Okay? Now, this is all about the information that in book में again लिखी है ये बात, लेकिन हम यहाँ पे कुछ अलग करने वाले हैं। What we need to do, the different methodology हमें समझनी है यहाँ पर। यार assumption की बात वो जब भी कभी करेगा, we will not assume like this, A minus D, A plus D। अगर हम ऐसे assume करेंगे तो questions become more complex। वो हम 11th 12th में करते थे। यहाँ हमें क्या कर रहे हैं, हमारे कोई वो नहीं देख रहा ना हमने किस तरीके से सॉल्व करा है, वो देखेगा यार राइट आंसर चूज करा है या नहीं चूज करा है। सो assumption is assume any number which is are in AP, which are in AP। मतलब आप कोई भी नंबर अज्यूम कर लो जो एपी में होना चाहिए। मान लो अगर कभी आपको गिवन है, लेकिन हाँ ये कंडीशन कब है, व्हेन द कंडीशन इज नॉट गिवन, कंडीशन इज नॉट गिवन। मान लो मैंने कभी बोला कि इफ एबीसी आर इन एपी, you can assume that A will be 1, B will be 2, and C will be 3. You can assume that A is 2, B is 4, C is 6. You can assume that A is 3, B is suppose 5, and C is 7. Means you can assume any value, the value has to be in AP. लेकिन AP में होने चाहिए, नंबर किस में होने चाहिए, AP में, डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्लियर है? Yes, yes. Got it? Now, yes sir. This is the condition only, but the condition is not given. What we will do when the condition is given? Suppose condition is given, then assume according to condition, assume according to condition। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा कि यार ये नंबर हम अज्यूम करेंगे तो हमारा आंसर कैसे आएगा, मतलब इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, देन आई विल टेल यू दैट हाउ वी कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इनटू द क्वेश्चन सॉल्विंग। ओके, नाउ तो अजम्पशन समझ में आ गया। देखिए ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये जरूरी है, रिक्वायर्ड है, बुक में लिखा है, लेकिन आप अप्लाई करेंगे दिस मेथड बिकॉज दिस गिव यू इन अ 30 सेकेंड आंसर ऑफ ईच एंड एवरी you can say questions। मैं आपको एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, then you will think यार ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, नाउ हमने अजम्पशन कर लिया, समेशन देख लिया, और एपी का हमने टर्म देख लिया कि टर्म हमें कैसे करना। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इज अरिथमेटिक मीन। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन?
Arithmetic mean is a average. Arithmetic mean is equivalent to average. Average. Average क्या होता है सर? टोटल सम अपॉन टोटल Total नंबर. number. टोटल नंबर सेम. सपोज मुझे ए बी सी डी ई एफ का अगर मुझे ए एम निकालना है, अरिथमेटिक मीन क्या होगा सर? सर होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ डिवाइडेड बाय 6, नथिंग एल्स. बट यहां हमें कैसे याद रखना है? हमें याद रखना है whenever it is given that if A, B, C are in AP, then this middle term B will be AM of A and C. Then B is the AM of A and C. अच्छा, आपको देखो वरीड होने की जरूरत नहीं है कि यार ये लिखा हुआ है मैं जल्दी जल्दी लिख लूं. लिखने में नहीं लगना है आपको. ये स्लाइड आपको मिलेगी. नहीं सर, आपको हम देखना है, जस्ट ठीक है? हाँ, B listening. is the AM of A and C. इसका मतलब है the value of B will be A plus C by 2 or sometimes 2B is equal to A plus C. Got it? Yes sir. Now, the final thing that you need to remember, suppose in any question it is written that if ABC are in AP, if ABC are in AP, you need to quickly, आपके माइंड में 3 चीजें आ जानी चाहिए, 3 से 4 चीजें इंटरप्रिटेट हो जानी चाहिए. पहला, यार B मेरा AM है और जो B की वैल्यू है वो A plus C by 2 है, ठीक है? और मेरे पास में मैं अगर चाहूं तो इसको 2B is equal to A plus C भी लिख सकता हूं, और मैं अगर चाहूं तो A को 1, B को 2 और C को 3 भी ले सकता हूं. आपके माइंड में ये सारी बातें एक साथ आनी चाहिए. मतलब जरूरी नहीं है कि नहीं यार आप चेक कर रहे हो, नहीं ये आ गया. अब जब ये आ गया तो आप क्वेश्चन को आराम से कर लोगे, ठीक है? अभी मैं सिर्फ एपी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं होगा सिर्फ एपी पे आ जाएगा. वो एपी जीपी और एचपी का एप्लीकेशन भी हो सकता है, ठीक है? तो हम टफ लेवल के क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे. तो अभी मैं आपके साथ सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, दैट नाउ दिस क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे. क्या दे रहा है? If the number A, B, C, D forms an AP, अगर ये नंबर मेरा AP फॉर्म करते हैं, then the value of this. सोचो what you will do. अगर मैंने वो assumption of number नहीं बताया होता तो आप क्या करते? भाई 5 नंबर है, 5 नंबर अज्यूम करते, C को कुछ करते, B को कुछ करते, A को कुछ करते, D को कुछ करते, E को कुछ करते, फिर वो सारी वैल्यू आप यहाँ रखते, then only you can get the idea. आप करके देखना. दिस इज एन होमवर्क. यू मिनिमम रिक्वायर्ड 2 minutes ऑफ टाइम टू सॉल्व इफ यू आर नॉट यूजिंग माय मेथड. इफ यू आर यूजिंग माय मेथड दैट सेज assume 1 2 3 4 5, nothing else, and put these value into this. 1 minus 4 into 2 plus 6 into 3 minus of 4 into 4 and plus 5. Solve it. 1 minus 8 plus of 18 minus of 16 plus of 5. So how much it is? 16, 18 and 16, 24. 24 minus 24, that answer would be 0. So the correct option will be 0. You do not need to worried कि सर none of these भी है तो क्या करेंगे. यार बना रहने दो. मैं आपसे गारंटेड लेता हूँ, आप पूरा सेशन ले लो, आप हर पेपर सॉल्व कर लो, कुछ भी कर लो. None of these will be hardly 0.01%. और वो भी कंडीशन मीट नहीं करेगा तब आपका आंसर आएगा और आपको पता चल जाएगा यार एक भी ऑप्शन कंडीशन मीट नहीं कर रहा है तो आंसर मेरा नन ऑफ दीज ही होगा. ठीक है? सो दिस इज द वे दैट वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, अजम्पशन ऑफ नंबर. लेकिन अब क्वेश्चन क्या होगा? एपी जीपी का मिक्स भी होगा, तो हमें पहले पूरा कॉन्सेप्ट एक बार करना है, देन वी विल पुट इट इन द अंडरस्टैंडिंग. ओके? आई थिंक यू गॉट दिस क्वेश्चन और यू हैव द डाउट. No sir, I got the question. You just have to assume the numbers as I have assumed these numbers. Suppose देखिए अगर आपके मन में आ रहा हो कि सर आपने 1 2 3 4 5 assume करा, take a different number, whatever you want to assume it. ठीक है? होमवर्क में कर लेना या अभी कर लो, आपका आराम से समझ में आ जाएगा कि what I am doing. Okay, now what we have the next is geometric series. What the geometric series is? Geometric series where the ratios between two consecutive terms are same.
ratio T. between two consecutive term is same, है ना, ratio. Suppose I assume that let first term is a and the common ratio is r, then what does the series become? The series become ar square ar cube dot 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 फर्दर चली जाएगी, ठीक है. मिनट नाउ अभी ए आर स्क्वायर ए आर क्यू ये कंटिन्यूअस आएगा. नाउ हाउ वी विल गेट इट द nth टर्म. सी प्लीज इमेजिन फर्स्ट टर्म है आर इज नॉट देयर, सेकेंड टर्म में आर की वैल्यू 1 है, थर्ड टर्म में आर की वैल्यू 2 है, फोर्थ टर्म में आर की वैल्यू 3 है. तो डेफिनेटली nth टर्म में आर की वैल्यू होगी n-1. गॉट इट? Yes, sir. This is my tnth term, means nth term of series. Nth term of series will be ar n-1, ar n-1. एंड कभी ना कभी तो सीरीज खत्म होगी, और जब सीरीज खत्म होगी दैट बिकम्स द लास्ट टर्म. दिस बिकम द लास्ट टर्म, दैट दिस आंसर वुड बी ar n-1, ar n-1. गॉट इट? नाउ Yes, sir. here is also we need to understand sum of series, but यहाँ थोड़ा सा difference होगा वहां से. sum of series can be calculated in two ways. One is for n term series, means जिसके number of term होगा n, and second is infinite series. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर ये एन टर्म सीरीज क्या है या इनफाइनाइट सीरीज क्या है. तो यहां पर आप ये समझ लो कि एस एन विल बी ए प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 प्लस ए आर n-1. इट मीन्स आपको नंबर ऑफ टर्म पता है, आप यू नो हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म आर देयर. एन टर्म मीन्स 25 हो सकता है, 90 हो सकता है, 105 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट सपोज सीरीज आर रिटन इन दिस वे दैट ए plus ar square plus ar cube dot 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 dot. There is no end term is there, so there will be a infinite series. Okay, now Yes, sir. how we will do the summation of this is a r n-1 upon r-1. This is the formula when r is greater than 1. think r में से 1 को माइनस कर रहे हैं, लेकिन जब r लेस देन 1 होगा तो दिस फॉर्मूला बिकम्स a 1 माइनस r रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस r. मींस अगर r 1 से छोटा है तो 1 में से r को माइनस करेंगे, और अगर r 1 से बड़ा है तो r में से 1 को माइनस करेंगे. ठीक है, दैट इज नॉट एन इशू. सिमिलरली इंफिनिटी, दैट a अपॉन दैट r माइनस 1, दिस a अपॉन r माइनस 1 व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, देन दिस इंफिनिटी विल बी a upon 1 minus r when r is less than of 1. Got it? Yes, sir. Now again the same term, same चीज आएगी, assumption of term. यहाँ भी हम assumption of term की बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ आपको वही हम assume करेंगे अपने numbers. लेकिन अगर book की बात करूं उसके according क्या करेंगे, assumption हम क्या करते हैं. मान लो आपसे पूछा जाए कि 3 term assume करो आप, तो assume करा जाता है a ar a अपॉन आर. वहां हम क्या कर रहे थे, डी कैंसिल हो रहा था, और जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आर वेनिस हो जाएगा. ठीक है, Yes, और sir. अगर मैं 4 टर्म अज्यूम करना चाहूं तो क्या होगा सर, वहां होगा a अपॉन आर ए आर क्यू दैट a अपॉन आर क्यू. These are the 4 term. Similarly 6 term करेंगे, similarly 5 term करेंगे, there will be no changes. Middle term लिखो ar a upon r ar square that a upon r square. लिखने का मेथड ये, you will never forget it. Again a Yes, upon r ar cube that a upon r cube, then this a raised to power 5 then a upon r की power 5. You will never forget. ठीक है, but what we will do, हम क्या करने वाले हैं, we will do that assumption of term similar way. When the condition is not given,
what we will do, assume any number which are in GP, which are in Yes, GP. GP. For example, 2, 4, मैंने 8. बोला if ABC are in GP, but nobody has said कि A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू क्या है और A क्या सेटिस्फाई करे, कुछ नहीं दिया. It means I Yes, can sir. take A is 1, B is 2 and C has to be a 4. If suppose I am taking Yes. A is 2, that B I am taking for example 6, 4. then C has to be a 18. डिफरेंस रिमेन सेम. इसमें मैंने 3 का मल्टीप्लाई करा तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, या मैंने 2 का मल्टीप्लाई Yeah. करा तो यहाँ भी मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा. ओके. Mm. When Yes, the sir. condition is given, when the condition is given, suppose if the condition is given, then what we will do, assume according to condition, assume according to condition. लेकिन ये चांस बहुत 1% होता है. The 99 chance पर this is given to you, 99% I sure. Now done, assumption of term done, summation of series is done, and the term and the nth or last term is also done. Now the term is geometric mean. Geometric mean. What is the geometric mean? See how we will calculate. Suppose I need to find out that A, B, C, D, E, F. How many terms are there? 6 terms are there, and I want to find out the GM. Find the GM. GM means geometric mean. GM will be multiplication of all the number and 1 by 6. Okay, 1 by 6. And this is called as a geometric mean. Got it? Yes, sir. Now, what is given to us? The mostly given hota hai if ABC are in GP. Please understand, then B is my GM of A and C. It means that B value will be AC ka multiply and 1 by 2 because these values are 2. And it means Yes, that B square will be AC. B AC. square will be AC. सेम आइडिया नोट में याद रखेंगे. अगर कभी आपको कह दो इफ ABC आर इन GP, आपके माइंड में अचानक से 3-4 चीजें क्लिक कर जानी चाहिए. B is the GM of A and C. B is equal to under root of AC. B square equal to AC. And A is equal to 1. If A equal to 1, suppose B is equal to 2, the C has to be a 4. I can assume any value. कहने का मतलब ये है आप value भी assume कर सकते हो. Clear है? ठीक सर. Now the last 5 minutes that you have to little bit more patience. थोड़ा सा 5 minutes. Harmonic series or harmonic progression that called as a HP. Now this is related to AP. This is related to AP. इसका अपना कोई individual significance नहीं है. This is related to AP. जब AP से related है, then how we can do that? Suppose I know A plus D, A plus 2D, that A plus 3D, dot dot dot, A plus n minus 1 into D. I know this is an AP. I know this is an AP. It means if I take a inverse of AP's term, that is 1 by A, 1 upon 1 plus D, 1 upon 1 plus 2D, then 1 upon 1 plus 3D, dot dot dot, 1 upon 1 plus n minus 1 into D. That series will be in HP. The series will be in HP. Got it? Yes, So अगर मैं yes, इसका sir. n term की बात करूंगा, the term will be A plus n minus 1 into D. The term will be A plus n minus 1 into D. अतः यहाँ से आपको कभी भी समेशन ऑफ सीरीज ऐसा कुछ आपसे नहीं पूछा जाता है. ठीक है, यहाँ पर बात आएगी अजम्पशन ऑफ टर्म की. अजम्पशन ऑफ टर्म. तो सर एक बात समझ लो आप, अगर हमने एपी के टर्म को 1 2 3 अज्यूम लेट करा है, तो HP will be 1 upon 1, 1 upon 2 and 1 upon 3. Suppose you are assuming AP as a
2, 4, 6, then HP will be 1/2, 1/4, 1/6. Got it? Yes, तो sir. आपको जब भी कभी HP अज्यूम करना है, then think AP and take a reverse, take a reciprocal of Okay. those number. ठीक है? Got it. Yes, sir. Now the last and the most important idea, most important, then harmonic mean. Harmonic mean. बिकॉज देखो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मोस्टली बच्चों को याद रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ हम कभी कभी भूल जाते हैं और ये हमसे पूछा जाता है एग्जाम में. हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन सपोज आपसे कहा जा रहा है कि इफ ABC आर इन HP, तो डेफिनेटली द B विल बी HM ऑफ A and C. But how we will find out the value of B? Let me tell you. अगर ABC मेरा HP में है, तो it is clear that 1/A, 1/B and 1/C are in AP. होगा भाई. AP Yes, का sir. इनवर्स लेंगे तो HP बन जाएगा, और HP का इनवर्स लेंगे तो AP बन जाएगा. और हमें AP पता है बन कि अगर ये AP है तो 1/ जो B की वैल्यू होती है वो होती है 1/A प्लस 1/C/2. मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C. ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व Yes. करते हैं तो हो जाएगा 2/B. एलसीएम लिया मैंने AC, ये हो जाएगा A प्लस C. सो B विल बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट A 2AC/A प्लस C. Then please remember this is highly useful formula that you need to require this. ठीक है, B. अब सिमिलरली यहीं भी सेम बात आ जाएगी. क्या आ जाएगी सर? अगर कभी भी कोई कह दे कि इफ ABC आर इन HP, अगर HP में है तो तीन चार बातें आपको अपने आप माइंड में आ जानी चाहिए कि भाई B मेरा क्या हो जाएगा, HM ऑफ A एंड C. B की जो वैल्यू होगी वो होगी 2AC/A प्लस C. और सर A की वैल्यू अगर मैं 1 ले रहा हूं तो B की वैल्यू 1/2 होगी और C की वैल्यू मेरी 1/3 होगी. बात क्लियर है? Yes, sir. यहां तक क्लियर है. अब हम एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. भाई AP कर लिया, ठीक है, उसका हमने अजम्पशन वाली बात याद रखेंगे. प्लीज अजम्पशन वाली बात याद रखेंगे, हम वैल्यूज को कैसे अज्यूम कर रहे हैं. अब हम क्वेश्चन करेंगे. आई हैव व्हाट द सीरीज ऑफ क्वेश्चन, देयर आर सम यू कैन से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एंड देयर आर सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. पहले हम कॉन्सेप्चुअल करेंगे, फिर हम आराम से प्रीवियस की तरफ मूव करेंगे और हम देखेंगे कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है. मेरे पास एक Okay, sir. क्वेश्चन है, you can try this and please let me know what is the answer. A, B, C, D, E are in AP and we need to find out the value of E minus A. Again the rest thing, please वो बुक वाला आइडिया भूल जाएंगे, मेरी वाली बात याद रखेंगे. 1, Yes, sir. 2, 3, 4, 5. किसकी वैल्यू चाहिए सर? E minus A. 5 minus 1, द क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है? 4. B आंसर होगा सर. कौन सा होगा? Sorry, C. यस यस यस. देखो ये सर 4 लिखा है, इसका मतलब है हमें ये जो वैल्यूज अज्यूम करी है वो हमें ऑप्शन में रख के देखनी है. 2 प्लस 4, यार ये तो 4 आएगा नहीं. जरूरी नहीं है कि आप 2 into 6 करोगे 12 आएगा तभी आपको पता चलेगा. यार यही पता चल गया, जस्ट लीव इट. 2 minus 4, leave it, this is minus 4. 2, 4 minus 2, that gives me 2 into 2 is equal to 4. That do not worried about the none of these, this has to be your answer. Otherwise Yes, you can solve any of way. आप नेट पे गूगल करके आराम से इसका सॉल्यूशन देखना और आपको मिल जाएगा what are the way the solution is. ठीक है, but this is not the right place कि I will tell you each and every और मेरी ये पूरी PPT भर जाए. That way I am not using. ठीक है. Now Yes, sir. this is the question that you need to understand. This is most important type of scenario. Why? Because it required both the understanding. If ABC in AP, that ABD are in GP, then we have to find out what are in this. ये वाली values किस में है. अब हम सारा पढ़ चुके हैं, लेकिन हम कैसे अप्लाई करेंगे वो कॉन्सेप्ट को let me show you. I know that ABC are in AP. That Yes, sir. ABD are in GP.
क्लियर है? Yes, sir. अब सर क्या करते हैं, हम इसको 1 और इसको 2 और इसको 3 2 or अज्यूम करते 3 हैं। and ये yes, मेरा sir. 1 हुआ, ये 2 हो गया। और हाँ प्लीज ये ध्यान 4. रखना, अगर ये ए बी एक पहले हम अज्यूम कर चुके हैं तो दोबारा से ए बी की वैल्यू अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ए बी सेम होनी चाहिए। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी डेफिनेटली। अब कुछ Yes, नहीं sir. करना आपको, आपको सिर्फ ए माइनस बी एंड डी माइनस सी चेक करना। ए की वैल्यू 1 है और ए माइनस बी की वैल्यू -1 है और डी माइनस सी की वैल्यू 1 है। तो देख के One. पता चल रहा है कि यार ये एपी में तो होगा नहीं क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, जीपी में GP में होगा क्योंकि yes, why this is minus gp, because -1/1 gives me -1, 1/-1 gives me -1, so ratio will be -1. The ratio are my -1. minus 1. Done. Yes, sir. You have observed कि you can do this question in 1 minute with me, that as I'm explaining you also. ठीक है, but you have inculcate these methods in you. After some time I think you can do this mentally. ठीक है, आप कर सकते हैं, बट आई एम नॉट सेइंग कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैन बी डन मेंटली, बट आई एम सेइंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन डन लॉजिकली। ठीक है, Yes, sir. नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर। Okay, so 1, 2, 3. Okay, let me help out. This is 1, this is 2, this is 3. So 1 upon BC, BC will be 6, 1 upon CA, Yes, that sir. will be 3, and 1 upon AB, that will be 2. Now think elimination of option. अब ये मान लो ये अगर HP में है, फॉर एग्जाम्पल, तो यार 632 AP में होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. इसका मतलब है But यार ये नहीं AP है. में है नहीं है, इसका मतलब HP रूल्ड आउट। अब आप जीपी और चेक कर लो सर, 1/3/1/6 गिव्स मी 2। इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, बट 1/2 एंड 1/3 नेवर गिव्स मी 2। व्हाटएवर जो भी आए लेकिन 2 नहीं आएगा, इसका मतलब है दिस इज नॉट जीपी, दैट इज ओनली Yeah, वन I got. ऑप्शन वी हैव। मैं यहाँ तक पहुंच गया था, फिर अच्छा, मैंने ओके, none of these. नाउ I अब got आपको confused. लगेगा यार नन ऑफ दीज है, एक और ऑप्शन बचा ना HAP, दैट वी हैव टू सी। 1/3 minus 1/6 and 1/2 minus 1/3. Take it 6, that is 2 minus 1. This is 6 and this is again a 3 minus 2. So this is 1/6, this is 1/6. It means the difference between this is 1/6, 1/6. The answer has to be a AP. AP. मान Yeah, लो, that means we have to look for all the options. yes, sometimes. अब suppose आपने क्या करा, पहले ही आपके पास में 1 2 3 and you said this is 1/6, 1/3 and 1/2. You have first option as a AP, just check it. 1/3 minus 1/6, 1/2 minus 1/3. So this is 6, this is 2 minus 1, that is 1/6, and this is 6, 3 minus 2, this is 1/6. You got this? Difference is same. प्लीज आपको एक बात बता दूं, ब्यूटी ऑफ यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, हम हायर मैथ्स कर रहे हैं, हायर मैथ्स में दैट माइट बी कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ ऑप्शन होगा बट नॉट ऑलवेज। इफ यू गेट इट 1/6 एट इंस्टेंट, तो यू कैन मार्क द आंसर एज अ फर्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो नीड टू चेक फर्दर। But if you have time, you are in an examination hall, there might be some stress. ठीक है, तो if you have the time and you want to check it, then you can check it very quickly. तो इसके लिए क्या है, जब आप habitual हो जाओगे तो quickly आप check कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। But I will suggest कि आपको दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, now let's do this and tell me what are the answer. Okay, oh sorry.
None of these may, yes, none of these. None of these. Let me check it. 1, 2, 3. This is 1 cube, that is 1. 3 cube, that is 27. Minus 8 into 8, that's 64. That means the answer would be 28 minus 64. That answer is, I think, minus of 36. But I have assumed the positive number. So this is also positive. So So this that is also can positive. be This is also positive. The answer would be none of these. सपोज somebody is saying कि यार मैं ऐसे नहीं करने चाहता. बहुत सारे लोग होते हैं वो कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं कि नहीं यार मैं सर ऐसे नहीं करूंगा. तो भाई आपके पास ना एक मेथड बचता है. मैं आपको बता चुका हूं कि एबीसी अगर एपी में है तो जो बी की वैल्यू होती है वो a प्लस सी बाई 2 होती है. तो आप देखो ए क्यू प्लस सी क्यू माइनस ऑफ 8, बी की वैल्यू रख दो a प्लस सी बाई 2 का होल क्यूब, है ना. तो क्या बचेगा ए क्यू प्लस सी क्यू माइनस ऑफ 8, दैट a प्लस सी होल क्यूब डिवाइडेड बाई 8 कैंसिल. This a cube plus c cube minus of a cube plus c cube minus, sorry, plus of 3a square c and plus of 3c a square, sorry, the c square on a. तो आप देखोगे that a cube plus c cube minus of a cube minus of c cube minus of 3a square c minus of 3 ac square. So this is cancelled. The answer would be minus of 3a square c and minus of 3ac square. So again we have none of the options. Answer is none of these. But I am saying कि जितना टाइम आप इसमें लगाओगे ना तो आप हो सकता है कि अगला क्वेश्चन आपको इजी मिल जाए या अगला क्वेश्चन टफ मिल जाए. तो इस इजी क्वेश्चन ने आपने जितना टाइम लगाया था वो टाइम आप रिड्यूस कर लोगे. और मैं आपको बता दूं दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ आईआईटी मेंस. ठीक है, मेरी क्लास में मैं ज्यादातर क्या करता हूं, दो टाइप के क्वेश्चन जरूर डिस्कस करता हूं. IIT mains previous year questions and there are some questions that MCA the previous year question also. ठीक है, तो मेरा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है फर्स्ट बेसिक एनसीईआरटी, देन आईआईटी मेंस, और उसके बाद में एक एमसीए की सीरीज रहती है कि भाई हमें एनसीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं. ठीक है, नाउ दिस इज आल्सो वन क्वेश्चन दैट यू कैन ट्राई. प्लीज ट्राई इट. Yes, sir. थोड़ा फास्ट करेंगे बिकॉज थोड़ा टाइम निकल रहा है धीरे धीरे. Okay, sir. A, B, C, D, E, R, and AP. Then we have to find out. So just 1, 2, 3, 4. A, B, C. A, B, C is Sir, 6. 6, 8, 12, 24. 6. 8, आगे 12, 8, 12 and 24. ये देख रहा है यार AP में तो होगा नहीं. नहीं. GP में भी नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे 2 आ रहा है. GP भी रूल्ड आउट. Yes, sir. अब एक ही ऑप्शन बचता है. अगर HP है तो ठीक है, अगर HP नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा, है ना. चेक इट HP. HP कैसे चेक करेंगे? अगर ये HP में है तो 1/6, 1/8, 1/12, 1/24 AP में होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. होना चाहिए. टेका Yes, sir. डिफरेंस 1/8 माइनस 1/6 और यहाँ पे लिख लो 1/12 माइनस 1/24 माइनस 1/12. टेक अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड डिफरेंस बिटवीन दिस. यहाँ देखूंगा तो 24 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 4, दैट इज व्हाट माय माइनस ऑफ 24. ये 24 आएगा, सो दिस 1 - 2, दिस इज माइनस ऑफ 24. यस. Yes, sir. So if they are in AP, so definitely these number are in HP. Done. Answer done. Yes, sir. Now you can visit the solution on Google of this question. ये सारे क्वेश्चन आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है, या फिर मैं आपको भिजवा दूंगा जो आपके पास में जहाँ लिंक मिला था. एंड those person will send you this all PPT. Okay, ये सेम क्वेश्चन आ गया by default. Okay, now let's do this. This is the most interesting question. ये 11th 12th में when I was also, मैंने भी पढ़ा, ये आपने भी पढ़ा होगा. हम वहाँ पे इस क्वेश्चन को ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता था, लेकिन यहाँ देखो कितना ब्यूटीफुली हम कर सकते हैं. Sir, how do we assume in HP like is this? हाँ, HP के लिए मैंने क्या कहा था, AP के माइंड में आता है 1 2 3, तो HP क्या हो जाएगा 1, 1/2 and 1/3. सिंपल. Yes, sir. ठीक है, सो अज्यूम इट. Yeah. P की वैल्यू 1/2 + 1 अपॉन 1/2 - 1 प्लस 1/2 + 1/3 एंड 1/2 - 1/3. सॉल्व इट. इसका मतलब क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यार इस बड़े से कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन को एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूँ. Yes, sir. है ना. सो दिस इज व्हाट बिकम 3/2, 1/2. ये सर कितना आएगा 5/6,
सॉरी दिस इज -1/2, 2 और ये आंसर 5/6 B सर, और ये सर मेरे पास में आ जाएगा 1/6, तो इससे ये कैंसिल हो 1 जाएगा, by इससे 6. कैंसिल, -3 + 5 आंसर इज 2। या Two. ऑप्शन बी करेक्ट। Now take a screenshot and see the answer. What can you मतलब possible answer आपको मिले। I hope आपको ये ऑप्शन मिले कहीं पर भी, मतलब इस टाइप से आपको मिल जाए। ठीक है, सो दिस इज द वे, एक्चुअली वे ये है। अब सॉल्व करने के लिए बहुत सारे Yes लोग sir. ये भी करते हैं यार, बी की वैल्यू क्या होगी, 2ac अपॉन a प्लस सी होगी। सर ये वैल्यू रख दो, 2ac अपॉन a प्लस सी प्लस a अपॉन 2ac अपॉन a प्लस सी प्लस a प्लस 2ac अपॉन a प्लस सी प्लस सी अपॉन 2ac अपॉन a प्लस सी माइनस सी। बट यार अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, यू नीड टू स्पेंड मिनिमम ऑफ 5 मिनट, बट आई एम नॉट विलिंग टू डू दैट। मेरे पास इतना स्पेस नहीं है यहाँ पे, या आई डोंट वांट कि मैं आपको बस मैं कराता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, मिटाता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ। आई डोंट वांट Yes sir, दैट। examination में तो इतना डेफिनेटली it's all about डेफिनेटली। time management. एंड आपको मैं एक बात और I बताऊं। I have a question I हाँ wanted to ask you. ओके Sir, I've been preparing when I was in my 12th standard, and my first year I was preparing for National Defense Academy. ओके So this is the things I have done in that preparation too. यस But दैट्स गुड। so how this coaching will gonna help me in my name set if I know the things you taught me, I knew them already. Okay, But my question is that how this coaching gonna help me in NIMSET? Because if I revise all these things, I can, maybe I will not do as good as with the coaching, but I know I'll do up to 75% as of the coaching. So how this coaching gonna help me? Can you okay. just guide Your me? your doubt is कि these methods whatever I am telling you, you know already. Yes, sir. You are Because I saying have done this. coaching NDA. So in that coaching, they taught me all these things. Okay, you have done the coaching for NDA, na? So no problem. Yes, sir. I have discussed this question. Can you solve this question for me? No, so right now I cannot because हाँ. I need a revision. So But the just point, see हाँ, I got you. I got your point. It means you know already, you know basics. ठीक है, you have you know the idea that how we can implement. But आपका जो टाइम पीरियड गुजरा है, उस टाइम पीरियड से हुआ क्या है, यू हैव आपका वो जो गैप आ गया है। ठीक है, सो पहला तो आपको जो हेल्प मतलब हमारे यहाँ जो मिलेगी वो ये होगा कि आपका एक रिवीजन हो जाएगा। हो सकता है कुछ चीजें आपको पहले से पता हो, जो चीजें आपको नहीं पता होंगी वो आपको हम बताएंगे, पहला। दूसरा, एनडीए इज अ मच सिंपलर देन एमसीए। एमसीए के लेवल ऑफ डिफिकल्टी एनडीए के लेवल ऑफ डिफिकल्टी से ज्यादा हायर होता है। इसका मतलब है आप उसी मेथड से आपने जो सीखा है या उससे थोड़े डेवलप और हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज गुड फॉर अस कि आपको पहले से अगर पता होता है तो हमारे लिए और अच्छा होता है, हमें थोड़ा सा कम टाइम लगता है समझाने के लिए, है ना। और हम अपनी जो बात और डिफिकल्ट क्वेश्चन में करना चाहते हैं, जैसे कि मैं अभी इसी क्वेश्चन में करूंगा, तो वहां भी हमें थोड़ा सा इजीनेस होती है। ठीक है, तो आपका जो डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो आपके टच हो जाएंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा, डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन टच हो जाएंगे, पहला मतलब पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। तीसरा, हैव यू हर्ड अबाउट आईआईटी मेंस? हर साल ऐसा होता है कि निमसेट में आपको 10% क्वेश्चन कॉपीड फ्रॉम आईआईटी मेंस होते हैं। अब आईआईटी मेंस का यार लेवल कोई छोटा मोटा लेवल तो होता नहीं है, निमसेट के लेवल से हायर रहता है उसका लेवल, एडवांस का तो और हायर होता है। तो आपको उस लेवल की डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया सर मेरी तरफ से बेनिफिट। अब मान लो आप ज्वाइन करते हो तो यार कोचिंग भी आपको कुछ प्रोवाइड करेगी, कंटेंट प्रोवाइड करेगी, आपको इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार मैं किसकी प्रैक्टिस करूं। मान लो मैंने आज सीरीज आपको पढ़ाया एंड आई गेव यू द 50 टॉप क्वेश्चंस टू सॉल्व इट। ठीक है, और आपने क्या करा, सॉल्व करा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपने सर्च आउट कर लिया इधर उधर से तो आपने सॉल्व कर लिया, तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ी सी एक कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। कंसिस्टेंसी जरूरी है किसी भी टाइप की प्रिपरेशन के लिए, है ना। तो एक कंसिस्टेंसी मिल जाएगी और आप अपने आप को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन हाँ मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था। ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, एनडीए के पेपर में आपने अगर आरएस अग्रवाल सॉल्व करी है तो जरूर ये क्वेश्चन करा होगा आपने, है ना, जरूर करा होगा। ठीक है, अब मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।
एमसीए के Yes, एग्जाम sir. की बात कर रहा हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन में बात Okay. करूं तो आप बोलोगे सर A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर इन HP, ये एचपी में है, और सर A1 इसका इसका इन सब का वैल्यू बताओ। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, हम इसको भूल जाएंगे, हमारे लिए सिर्फ ये 3 टर्म है, तो इधर भी Hmm. हमारे लिए 3 ही टर्म आएंगे। लेकिन टर्म कैसे Hmm. आएंगे, जब A1 है तो देखो A2 A3 आ रहा है, इसका मतलब इसको हटा देंगे। जब A2 है तो A1 A3 आ रहा है, तो इसको हटा देंगे। जब ये यहाँ पर A3 आएगा तो वहां पर आएगा A1 प्लस A2। इसका मतलब है A2. हमारे लिए क्वेश्चन बना A1 अपॉन A2 प्लस A3, फिर आएगा A2 अपॉन A1 प्लस A3, फिर बना A3 अपॉन A1 प्लस A2। और क्वेश्चन बन गया इफ A1 A2 A3 आर एन HP। ये हमने क्या करा, क्वेश्चन को जो जनरलाइज क्वेश्चन का उसको हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया अपने यूज के अकॉर्डिंग, Hmm. ठीक है। अब ये क्या Yes, हो sir. गया, 1 1 बाई 2 क्योंकि एचपी में Hmm. सेम वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे। 1 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 2 1 प्लस 1 बाई 3 1 बाई 3 1 प्लस 1 बाई 2 एंड सॉल्व इट। सॉल्व करेंगे तो 1/5/6 आ रहा है, ये 1/2/4/3 आ रहा है, और ये मेरे पास आ रहा है 1/3/3/2। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये 6/5 हो गया, ये जो वैल्यू मेरे पास है वो 3/8 हो गई, और ये जो वैल्यू है वो 2/9 हो गया। अब मुझे ये Hmm. देखना है कि ये टर्म किस में है यार, जीपी में तो होंगे नहीं। सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन No, और sir. इसकी बात करूं तो जीपी में इसलिए नहीं होंगे क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है, इन दोनों में कहीं रेशियो में 5 आएगा ही नहीं। एपी में No, चेक sir. करूं तो यार डिफरेंस देखूं, यहाँ एलसीएम 40 आएगा और यहाँ पर एलसीएम अगर देखूंगा तो 72 आएगा। तो जब डिनोमिनेटर ही सेम नहीं होगा तो एपी तो होने का हाँ. मतलब ही नहीं बनता। अब सर एक ही ऑप्शन है Yes, कि sir. यार तो एचपी आंसर होगा या फिर ये होगा। एचपी चेक कर लो, उल्टा कर लो इनको, 5/6 8/3 9/2। अगर मान लो कि ये वाले टर्म मेरे एचपी में है, बिकॉज आई एम चूजिंग द थर्ड ऑप्शन, अगर ये एपी में है तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसका डिफरेंस चेक करूंगा उल्टा करके। तो इसका डिफरेंस ये 6 आ गया, तो 5 माइनस ऑफ Hmm. व्हाट 16, 16. इसका एलसीएम 16। और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये 6. 6, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 16 माइनस ऑफ 18, सॉरी 8/3, दिस इज 5/6 8/3 एंड दिस इज, give me a minute, let me check, give me a minute. Okay, I think I have did the same, that this is 6/5, this is 3/8 and this is 2/9. What I need to check, 5/6 8/3 and this is 9/2, है ना, 9 by 2 2/9 का minus 2 9/2 by. का। हाँ, अभी मैं इसका Yes, sir. डिफरेंस लेने वाला हूँ। डिफरेंस लूंगा तो यहाँ एलसीएम 6 आ जाएगा, ठीक है। और दिस इज व्हाट आई एम कैलकुलेट, दिस 8 minus 3, so LCM will be 6, so this is 5 minus 2, that is 16, that is minus 11/6 मेरा ये आ रहा है। यहाँ पर जब मैं एलसीएम Hmm. लूंगा 6 तो ये मेरा हो जाएगा 16 माइनस ऑफ 16 minus 27. 27, so this also will be minus of 11/6. Hmm. It means this number is in AP, this number is in AP, it means that number has to be in HP, so answer HP is my correct answer. Clear है? Yes, sir. Now do not spend much time on this, I hope आप ये वाले क्वेश्चन कर लोगे। Now I'm moving towards the previous year question of MCA. Okay, let's start. Okay, sir. Yes, Now sir. let's do, okay, let me solve this question for you. This is a much interesting question. I think you have experience, आपने पहले कभी हो सकता है solve कराओ। This is again IIT mains question. If ABC are in AP, AXB are in GP, then B by C are in GP, then find out X square, B square, Y square are in. Can you try? Giving you 1 minute. Yes, sir. I'll give it. Giving you 1 minute. Try this.
Okay, sir. The answer will be b square. It will be in 2643. Not in GP. So it will be in HP, maybe, I think. I think HP. Okay, let me try. I know I'm not remembering the answer of this. ABC, that is AP, AXB, GP, then B by C are also in GP. And what I need to calculate, X square, B square, and by square. I need to assume 1, 2, 3. This is already 1 and 2. If this is 1 and 2, what is the value under root 2? Yeah, so X square will be 2, sir. Directly we can say. हाँ, X square will be 2. You can say. और दूसरा ये, अगर ये मेरा 2 है, ये 3 है, that has to be under root 6. So yeah, It so y means square that will be X 6. square is 2, y square is 4. Sorry, B square is 4. B say, and y square will Y be square is 6. 2, 4, 6. The number are in AP. Simple. Got it? Oh, I just मैंने आगे पीछे कर दिया y square. I think you missed now. Maybe. Not an issue. That is not a problem. But the thing is, whatever I have told you, that apply it in this question. And this is not an easier question. If you will apply the basic method, you require minimum of 3 to 4 minutes to solve it. Yes, sir. Now, there are some questions you can attempt easily. ठीक है, आप कर सकते हैं. Let me ask you one question straightforward. This is the question that how you will do this. This is the MCA previous year question. There are 5 to 6 MCA previous year question, and you need to solve it instantly. Can you do it without pen and paper, or you can say in a 1 minute के कम time में आप आराम से कर ले. Try करो. Okay, sir. I'll give it a try. No, sir. You. नहीं? Okay, let me Yes, sir. solve this for you. Give me a minute. Read it carefully. Please, information we have to read very carefully. The harmonic mean of two number is 4. The harmonic mean of two number is 4. Their arithmetic mean is A. The geometric mean is G. And the arithmetic and geometric mean satisfying this equation, then find out the two number. It is a direct question कि वो पूछ रहा है कि यार ऐसे दो नंबर बताओ जिनका हार्मोनिक मीन 4 हो. देखो, फाइंड आउट टू नंबर. इसका मतलब है जिनका हार्मोनिक मीन 4 होना चाहिए. बताओ. Yes, sir. ऑप्शन से चेक कर लो sir. यार किसका हार्मोनिक मीन 4 है. 2 into 4 into 2 divided by 4 plus 2. No, not an answer. 2 into 6 into 3 divided by 6 plus 3. या 2 into 18 divided by 9. Yes, this is 4. Maybe the answer. Next, 2 into 5 into 7 divided by 12. No, this cannot be 4. And this is 2 into 4 into 1 divided by 5. Again, this cannot be. So the answer is option B. I don't know others how they are going to solve it, but I am solving like this every time. Okay. Information are very essential, मतलब to understand. If you are not able to understand the information given to us, देखिए सिंपल सी बात, मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हो, वो चाहते हैं कि बंदा और सिखाया मिले. उन्हें ना टेंशन नहीं पालनी है. उन्हें बाद में एडमिशन देने के बाद में आप समझ रहे हो, मैं थोड़ा सा अगर मैं वर्ड यूज कर लूं यार, जब 2008 में थोड़ा सा बीटेक का क्रेज बढ़ा था, 2008-9 बहुत सारा बच्चा गया. Yes, sir. गधे घोड़े सब चले गए. ठीक है, 2011, 12, 13, 14, 15 कर लिया जैसे मैनेज करना था. उसके बाद में रिसेशन इतना बड़ा आया कंट्री में, क्या आप समझ रहे हो कि आदमी क्या कर रहा होगा. उसके बाद में आपको इंजीनियरिंग जाना नहीं चाहता है ना. तो उन्हें चाहिए ऐसा बंदे जो जब वो पास आउट करें, जब वहां से पास आउट हो तो उनके कॉलेज का भी नाम खराब ना हो. ठीक है, तो उन्हें सिखाया थोड़ा स्मार्ट बंदा चाहिए जो इन्फॉर्मेशन को समझ पाए, इजिली कर पाए. इसीलिए तो एग्जाम रखते हैं, नहीं तो एग्जाम ही नहीं रखा जाए, है ना. Now let's do, this is the question, this also the previous year question. I think this is 2017 या 16 का क्वेश्चन है. ठीक है,
मतलब मैंने देखिए कॉपी करा है एक इमेज से, तो ये इस टाइप का दिख रहा है, टाइप नहीं करा हुआ है. Yes, sir. I can understand Okay, that. read it and do this question. Interesting. Done? Yes, sir. What is the answer? No, sir. Answer is I didn't. Okay. Just read it. Sir, here we have to assume, I think, because it's saying 3 positive numbers, so we can assume. You can assume it, but let's see. The 3 positive number whose sum is 21 are in the arithmetic progression. If 2, 4, 14 are added to them respectively, the resulting number are in the geometric progression. The which of the following not among of the 3 number? Which of not following among of the 3 number? So what is given? यार a plus b plus c का summation 21 है, and a is also positive, b is also positive, c is also positive. A, B, C तीनों positive है. Then tell me how it is possible that 25 is a number? Yes, sir. तीनों Not में से possible. 25 तो हो ही नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? Yes, इसलिए sir. नहीं हो Yeah. सकता No. क्योंकि भाई ये तीनों पॉजिटिव है. हाँ, अगर वो ये वर्ड यहाँ से हटा दे, ये वर्ड हटा दे, then we have to apply the method. कोई भी मेथड Yes, अप्लाई sir. कर लो, आप नंबर मान लो, आपका कुछ और कर लो, लेकिन आपको क्या करना है? मेथड अप्लाई करना है. बट मुझे लगता है कि कोई अगर आपसे ये कह दे कि यार ए बी सी 21 समेशन है और तीनों पॉजिटिव नंबर है, तो ये ऑप्शन है. अब ये Yes. बताओ इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? यार एक ही नंबर जो है वो नहीं हो सकता, 25. अब ये क्वेश्चन क्यों दिया होगा एग्जामिनर ने? अब एग्जामिनर ने कुछ सोच समझ के दिया होगा कि मतलब उन्हें ऐसा नहीं चाहिए कि बंदे ने सिचुएशन देखी और वो रट्टा मारने लग गया कि यार मैंने ऐसा क्वेश्चन कहाँ पे करा था, क्या अज्यूम कर लूं, क्या कर दूं, है ना? Yes, sir. Yes, sir. दैट्स व्हाई वी आर मतलब मास्टर डिग्री का मतलब ही क्या मैंने भी है? ध्यान नहीं दिया है. हाँ आपने, हाँ कोई. यू कैन डू दैट, लेकिन आपने ध्यान नहीं दे पाया उसके लिए. ठीक है, ये क्वेश्चन मैं लेटर ऑन आऊंगा, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, एंड आई होप यू कैन ट्राई दिस, मतलब यू कैन सॉल्व इट. ट्राई करो. ऐसे क्वेश्चन आपने एनडीए में भी बहुत करे होंगे. Yes, sir. 1/3 plus 1/9 plus 1/27. So 9. And A is 1/3 and R is 1/3. Okay. Should I help you? Yes, sir. हो तो क्या 9 रेस्ट पर अंदर जीपी की सीरीज बनेगी एंड हाँ. then we'll solve it. But मेरा आंसर आ नहीं रहा. कोई दिक्कत don't नहीं. know let me try for you. 9 मतलब मैंने पॉइंट पकड़ लिया कि कहाँ से कैसे 1 by सॉल्व होगा. 3 plus 1 by 9 plus 1 by 27 dot 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 dot. It means this is a infinite series. So 9, Oh, it's a, the task okay, is we sir. have to find the summation of this. So what is Yeah. the R? R is common ratio 1 by 3. What is A? A is 1 by 3. So summation will be 1 upon, sorry, A upon 1 minus R. That will be 1 by 3 मैंने इसको upon 1 minus 1 by 3. So that will be 1 by 3 upon 2 by 3. So the resultant will be 1 by 2. मतलब इस series का जो Answer will be summation 3. है that 1 by 2. So 3. answer would be 3. And option और A मैंने is एक correct. मिस्टेक कर दी. मैंने इसको 3 टर्म्स मान लिया. मैंने आगे वो देखा नहीं कि इनफाइनाइट जा रहा है. Infinite है. मेरे को पॉइंट. ठीक है, हाँ.
ये क्वेश्चन बहुत इजी है, यू कैन ट्राई, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे आई एम सॉल्विंग फॉर यू, एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ 2018 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, और इसको आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन 19 और 20 में भी आया था इस टाइप का, नॉट द सेम क्वेश्चन, ठीक है। करना कैसे है यार, वो कह चुका है कि if a1 a2 dot 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 an are in AP that a1 is 0, already it is given that a1 is 0, then the value of this, इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ जनरल टर्म दे रखा है, यहाँ भी जनरल टर्म दे रखा है, तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हम यहाँ पे कितने टर्म अज्यूम करें, a1 a2 a3 a4 क्या लें, हमें ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब मान लो मैंने लिया a1 a2 a3 a4, क्यों लिया, क्योंकि ऑलरेडी a1 की वैल्यू वो दे रहा है, एंड आई नीड टू अज्यूम 3 नंबर एटलीस्ट, क्योंकि देखो 2 नंबर आप अज्यूम करोगे तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा ऑप्शंस में, तो हमेशा ध्यान रखेंगे मिनिमम 3 से 4 नंबर होने चाहिए। अब कोई बोलेगा सर मैं तो एपी का एक ही नंबर अज्यूम करूंगा 1, अब आंसर बताओ, ऐसा नहीं हो सकता ना, आप एक सफिशिएंट कंडीशन हो। मुझे बताइए यार ये 0 है, व्हाट आई विल डू, दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3, कहने का मतलब है दैट a1 a2 a3 a4, द पॉइंट इज ये an है, तो मैंने जो n की वैल्यू अज्यूम करी वो करी 4, मैंने क्या करी 4, ये वैल्यू है 0, ये है 1, ये है 2 और ये है मेरा 3, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, आप बताओ an अगर 4 है तो an - 1 3 होगा, इसका मतलब है हम सिर्फ इसको इतना ही लिखेंगे, इसके आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, a3 अपॉन a2 प्लस a4 अपॉन a3, बिकॉज हमारा a4 तक ही हमें पता है, अब आगे क्या होगा, आगे होगा a5 अपॉन a4, लेकिन ये तो हम लिखना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास नंबर ही नहीं है, माइनस a2 माइनस a2, लेकिन a2 के बाद हम देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जनरल टर्म क्या है, an - 2, n की वैल्यू अगर मेरी 4 है तो सिर्फ हम क्या लेंगे यहाँ पर a2 लेंगे बस, a2। अब आप कोई पूछे सर a3 क्यों नहीं ले रहे, इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि n की वैल्यू जब आप यहाँ 4 लिखोगे तो सिर्फ ये 2 आएगा, तो a2 ही आएगा और कोई भी टर्म बाकी का सारे के सारे वैनिश हो जाएंगे, क्योंकि हमने सिर्फ a4 तक लिया है। अगर so that means we can take the question according to ourselves. yes we are putting, मतलब we are, और लेकिन देखिए क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन है वेरिएबल, ऑप्शन आंसर वेरिएबल में पूछा है और ऑप्शन भी वेरिएबल है, कहने का मतलब है ये हायर मैथ का सबसे बेसिक फंडा है, क्वेश्चंस गिवन इन वेरिएबल, options given are variable, assume the variable and try to find out, manipulate and find out, that is not a problem। अब a3 की वैल्यू है सर मेरे पास 2, a2 की वैल्यू है मेरे पास 1, a4 की वैल्यू है 3 एंड a3 की वैल्यू है 2, और सर यहाँ वैल्यू आ गई मेरे पास 1, क्योंकि a2 से a2 कैंसिल हो जाएगा 1, सर ये जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7/2 - 1, द आंसर इज माई 5/2, ओके। अब क्या करना है, ऑप्शन जो है वो n के फॉर्मेट में है और n कितना है हमारा 4, put this n into the options, whichever gives me 5/2 that is correct answer। पहला चेक कर लो, 4 - 2 plus 1/4 - 2 that is 4 plus 1 upon 2 upon 1/2, so answer is 5/2, can be answer, check it further, 4 - 2 no again I think no, so the option yes, A is my correct answer and you can match it, got it? Yes sir. This is sir I wanted to ask there are more further question or this was the last one? this is the last question, nothing else। okay, so आप कुछ कह रहे थे आप? हाँ मैं ये कह रहा था, this is the way that we will going to solve the questions of trigo, algebra and geometry। what about the calculus, if you ask me, sir देखो calculus is a something that changes on the basis of function, ठीक है, so these methods are not applicable in the calculus। मैं आपको देखो धोखे में रखूं कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे यार मुझे ही पढ़ाना है और अब मुझे आपके साथ एक कंटिन्यूटी बना के रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, क्योंकि मैथ्स इज अ प्रायर, ऑलरेडी ये बात हो चुकी है कि भाई जो मैथ्स है वो एमसीए के लिए बड़ा प्रायर होता है, बाकी के तो ठीक है बाकी, और मैं आपको बता दूं मैथ्स के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट की भी अपनी एक वैल्यू है, और आपको हर सब्जेक्ट, हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट आपको टॉप लेवल का मिलेगा,
every subject. You will enjoy the session and you will inculcate the short tricks whatever the related to your exam, और आप एग्जाम को करोगे यार I can solve it, ये मैं कर सकता हूँ मेरे सब्जेक्ट में। रीजनिंग वाले सर रीजनिंग वाले सेमेस्टर की बात करेंगे और इंग्लिश वाली जो मैम है वो इंग्लिश की बात करेंगे, और आप देखोगे कि यार आप इजीली कर सकते हो। ठीक है सिद्धांत, अब Sir, आपको कोई but, डाउट sir, है कैन आस्क मी। are you gonna conduct the